Namaskar. I am Professor Nandini Sahu, Vice Chancellor, Hindi University, West Bengal. We have introduced a YouTube lecture series, a very special lecture series on comparative world literatures in the Hindi University, West Bengal since January 2025, after I joined the position of the Vice Chancellor. In the process of the series, we have invited more than 35 scholars, researchers, senior professors, academicians, creative writers, critics, and theorists all over the world, and they have delivered lectures for our university under the umbrella term comparative world literatures, and they have taken their specific subjects like their own research, and then they have taken critical pedagogy from different world literatures, and then they have become an integral part of the Hindi University West Bengal special lecture series on comparative world literatures. Today, I am immensely happy that this lecture series has created ripples in Indian academia and outside. Many universities have approached us to utilize the lectures delivered by our experts as a part of their classroom teaching and research and theory classrooms, as far as their literary theory classes are concerned or comparative literature classes are concerned. And this is a milestone that within 6 months of the introduction of the lecture series, thousands and thousands of researchers and scholars have been closely associated with us, and we are editing a volume, Comparative World Literatures, where we have invited research papers from all the speakers who have already delivered lectures for us. Also, we have invited those scholars who are going to be a part of our lecture series, and they have shown enthusiasm to contribute their full-length papers to the edited volume Comparative World Literatures, which eventually we will use as a part of our coursework on comparative world literatures when we introduce the Department of Comparative World Literatures in Hindi University. Also, I am immensely happy to share with our scholars, our readers, and our enthusiasts that the internal faculty members of Hindi University have started contributing in a meaningful way to the pedagogy of comparative world literatures. They have started delivering lectures under the umbrella term comparative world literatures, and 2 or more internal faculty members of Hindi University have already delivered their lectures, and more number of faculty members have registered with the series, and they are discussing their research with me, and very soon, within a couple of weeks, we will complete the recordings of the internal faculty members of Hindi University who have also been critically a part of the comparative world literature series, like translation studies departments, then the Hindi department people, history and political science department people. How they can be a part of comparative world literatures is the question here, the point of concern here. Translation studies people can use comparative literature not just as a linguistic exercise, but as a method of epistemic mediation. They allow ideas, concepts, and narratives from Hindi and other Indian languages and world languages to enter the global academic conversation while retaining their cultural and philosophical integrity. For history and political science departments, translated archives, oral histories, and political texts can be comparatively used and read to question the dominant narratives in the world, and also to rediscover the silenced texts, the silenced voices. Like I read somewhere that history is written by the winner.
Now, what happens to the history of the so called loser? Ethnomusicologists, historians, they take up the history of the so called loser as a part of their research. So, this is what our history department people are doing, and I am very happy to share that many of them have been highly published and they are working on ethnomusicology, on history and pedagogy of the historical texts, which are also a part of the comparative world literatures in a very intertextual and polyphonic way, in a very interdisciplinary, transdisciplinary, and multidisciplinary way. For history and political science people, translated archives and oral histories and political texts, they speak out for the people who are marginalized, who are the subaltern, who do not have a voice. And this makes comparative literature a methodology of resistance against epistemic colonialism, epistemic violence against the subaltern. And then when it comes to languages for global theorization, through comparative literature frameworks, Hindi and other literature departments, they can be, they take it as a part of their history, their research and publication. And these researches can be used as models for a theoretical source in their own rights, producing indigenous concepts, aesthetic categories, and political critiques. Comparative readings of Hindi texts in our Hindi university, alongside the world literatures, they can help political science people explore cultural nationalism, which we are successfully doing, subaltern politics, and movements of resistance, while history can locate them in specific temporal and sociological and social contexts. And then when it comes to reframing world literature from the global south, comparative literature enables the comparative world literature departments to challenge the canon by foregrounding, South dialogues and Hindi dialogues with African, Latin American, Southeast Asian texts instead of the usual North-South pedagogy or North-South dichotomy. We believe in inclusivity and flexibility, and through this comparative world literatures lecture series, we have been successfully doing it, and I am very happy to share here that not just external experts but the internal faculty members from Hindi, translation studies, history and political science departments from our university have been substantially contributing. They have been delivering lectures. Comparative literature enables the world literatures to challenge the canons, and also how comparative literatures engage with political science to map these literary exchanges against patterns of decolonization, post-colonial alliances, and transnational solidarity movements is the point of concern here, and our faculty members have been constantly discussing these ideas and ideologies with me, and they have been contributing to the lecture series through publications and through lectures, and we are sharing those YouTubes with you continuously. History can trace the deep structures of cultural memory, migration, labor through these comparative readings. And when it comes to memory studies or mnemoculture, through comparative world literature's pedagogy, we are also contributing to the narratives as archives of political and historical knowledge systems. Literary texts, when approached through comparative literature, become the alternative archives for history and political science, preserving the dissent, everyday resistance, and emotional registers that are absent in our state records. We are making the silenced voices speak. Through translation studies, we play a crucial role by making such living archives, by creating such living archives on dying languages, on dying cultural heritages, and we are making those available, and we are enabling the cross-cultural research and pedagogy through this lecture series.
Hindi's vast corpus of novels, poetry, and folk literature becomes a living laboratory for these archival excavations. We are dealing with Hindi literature, Bengali literature, English literature, and all other Indian languages and literatures, and also world literatures through this particular very important series that has created ripples in Indian academia. Comparative literature has become a pedagogical common for us. In teaching, comparative literature offers an interdisciplinary classroom where translation studies, Hindi, world literatures, history, and political science they co-teach models like revolutions in literature, colonial encounters, memory and migration studies, and our students are learning how to read a poem or how to read a novel or how to read any text from history or public administration or political science by applying the comparative research methodology. We are very rich in research methodology classes in the Hindi University. In fact, our faculty members take very special classes on research methodology for our students, and those classes are extremely useful for the students, and they have given me the feedback about it. This fosters the 21st century research skills, critical multilingual reading, cross cultural analysis, and the ability to recognize literature as both aesthetic and political action. The personal is political, isn't it? So, in the Hindi University, the matters that we discuss as a part of our personal discourses through this comparative world literature series are also our political, academic, and social statements. We have created ripples, we have created a signature of our own, a brand of our own, brand Hindi University. Once again, I congratulate all the external speakers who have also contributed to our comparative world literatures lecture series and the internal faculty members who have started contributing to the series in a big way. Thank you. Namaskar. नमस्ते, मैं डॉक्टर शोभिता मित्र, हिंदी विश्वविद्यालय की इतिहास विभाग की शिक्षिका। हमारे विश्वविद्यालय में तुलनात्मक विषय साहित्य पर हमारे विश्वविद्यालय की कुलपति आदरणीय प्रोफेसर नंदिनी साहू मैडम द्वारा आयोजित लंबे समय तक जो लेक्चर सीरीज चल रहा है, आज मैं उस लेक्चर सीरीज के हिस्सा होके बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। हमारे विश्वविद्यालय की कुलपति आदरणीय प्रोफेसर नंदिनी साहू मैडम को प्रणाम निवेदित करते हुए मैं अपना आज का जो वक्तव्य है वो आरंभ करना चाहूंगी। मेरे वक्तव्य के विषय है तुलनात्मक विश्व साहित्य में इतिहास और साहित्य का अंतर संबंध, भारतीय और विश्व इतिहास परिप्रेक्ष्य। मैं मेरे वक्तव्य पेश करने से पहले एक प्रसिद्ध उपन्यासकार विलियम फॉकनर का एक पंक्ति बोलना चाहूंगी। द पास्ट इज नेवर डेड, इट्स नॉट इवन पास्ट। फॉकनर का ये गहन विचार दर्शाता है कि इतिहास कोई समाप्त अध्याय नहीं है, बल्कि एक जीवित और सक्रिय शक्ति है जो हमारे वर्तमान को लगातार आकार देती है। साहित्य में ये बात विशेष रूप से स्पष्ट होती है। कहानियां अक्सर पूर्वजों की संघर्ष, विरासत में मिले आघात, सांस्कृतिक स्थिति और अधूरे संघर्ष की गूंज को अपने भीतर समेटे होती है। पात्र को उनका अतीत सिर्फ यादों के रूप से नहीं, बल्कि एक जीवंत प्रभाव के रूप में प्रभावित करता है। ये पंक्ति समय को रैखिक नहीं बल्कि परतों में बांटा हुआ दर्शाती है। ये समझने के लिए कि आज क्या हो रहा है, हमें ये जानना जरूरी है कि पहले क्या हुआ था। इस तरह साहित्य एक शब्द माध्यम बन जाता है जिसके जरिए अतीत हमसे संवाद करता है और याद दिलाता है कि वो कभी वास्तव में बीतता नहीं। अब हम कुछ स्लाइड दिखाएंगे।
मेरे पास स्लाइड जो है वो है साहित्य और इतिहास का अंतर संबंध। साहित्य और इतिहास दो महत्वपूर्ण अंग हैं जो समाज और संस्कृति के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। साहित्य इतिहास का प्रतिबिंब होता है, जबकि इतिहास साहित्य के साथ जुड़कर मानवता के विकास को समझने का एक उपकरण बनता है। भारतीय साहित्य में इतिहास को बड़े पैमाने पर दर्शाया गया है, जैसे महाभारत और रामायण में ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन है। इतिहास और साहित्य के बीच का संबंध मानव संस्कृति के अध्ययन में मूलभूत है, क्योंकि दोनों ही अनुशासन समय के साथ मानव अनुभवों को दर्ज करने, उनकी व्याख्या करने और उन्हें अर्थ प्रदान करने का कार्य करते हैं। इतिहास अतीत की घटनाओं, राजनीतिक परिवर्तनों और सामाजिक बदलाव का संरचित विवरण प्रस्तुत करता है, जो प्रामाणिक साक्ष्य और दस्तावेजों पर आधारित होता है। इसके विपरीत साहित्य ऐतिहासिक वास्तविकताओं का एक व्यक्तिपरक और कल्पनाशील चित्रण प्रस्तुत करता है, जो अक्सर उन भावनात्मक, नैतिक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं को उजागर करता है, जिन्हें औपचारिक ऐतिहासिक विवरण अनदेखा कर सकता है। साहित्यिक रचनाएं अपने ऐतिहासिक संदर्भ से प्रभावित होते हैं और अपने समय के चिंताओं, मूल्यों, मूल्य और संघर्ष को प्रतिबिंबित करती है। साथ ही साहित्य ऐतिहासिक चेतना को भी प्रभावित कर सकता है, जिससे सामाजिक स्थिति और सांस्कृतिक पहचान का निर्माण होता है। ऐतिहासिक घटनाएं अक्सर साहित्यिक आंदोलनों को प्रभावित करते हैं, जैसे कि द्वितीय विश्व युद्ध की विनाश लीला ने युद्धोत्तर साहित्य में अस्तित्ववाद की प्रवृत्ति को जन्म दिया। इसके विपरीत साहित्य प्रचलित ऐतिहासिक कथाओं की आलोचना भी कर सकता है और वैकल्पिक दृष्टिकोण प्रस्तुत कर सकता है, जो स्थापित व्याख्या को चुनौती देते हैं। इस प्रकार इतिहास और साहित्य केवल परस्पर संबंधित नहीं है, बल्कि संवादात्मक भी है, एक दूसरे की व्याख्या को समृद्ध करते हुए अतीत और उसके वर्तमान प्रभाव की अधिक समग्र समझ प्रदान करते हैं। इतिहास और साहित्य गहराई से जुड़े हुए विषय हैं, जो मिलकर हमें समय के साथ मानव अस्तित्व को समझने में सहायता भी करते हैं। इतिहास भूतकाल की घटनाओं का व्यवस्थित अध्ययन है, जिसका उद्देश्य दस्तावेज और साक्ष्यों के आधार पर यह पता लगाना होता है कि वास्तव में क्या हुआ था। ये राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विकास की सटीक कहानी प्रस्तुत करता है। हालांकि इतिहास मुख्य रूप से तथ्य, तारीख और घटना पर केंद्रित होता है और अपेक्षाकृत वस्तुनिष्ठ होता भी है। साहित्य इसके विपरीत है, भूतकाल को एक कल्पनाशील और व्यक्तिगत दृष्टिकोण से दिखाता है। उपन्यास, कविता, नाटक और अन्य रचना रूपों के माध्यम से साहित्य व्यक्तियों और समुदाय के जीवन, भावना और विचार को खोज करता है। ये दिखाता है कि लोग अपनी वास्तविकताओं को कैसे समझते और अनुभव करते हैं, जो कि इतिहासकार द्वारा दर्ज की गई वही घटनाएं हो सकती है। लेकिन साहित्य में इसका फोकस व्यक्तिगत अर्थ, मनोवैज्ञानिक गहराई और नैतिक जटिलता पर होता है। ये दृष्टिकोण दोनों विषयों को पूरक बनाता है। साहित्य इतिहास को मानवीय बनाता है और उन आवाजों को प्रस्तुत करता है जिन्हें आधिकारिक रिकॉर्ड में नजरअंदाज किया जाता है। ये जिंदगी, संस्कृति, नियमों और भावनात्मक प्रतिक्रियाओं की गहराई दिखाता है, जिन्हें केवल कड़े ऐतिहासिक तथ्य नहीं बता सकते। उदाहरण के लिए एक ऐतिहासिक दस्तावेज किसी क्रांति के नेता और लड़ाइयों के बारे में बता सकते हैं, लेकिन उस क्रांति के दौरान लिखा गया उपन्यास या कविता आम नागरिकों का डर, आशा और पीड़ा व्यक्त कर सकता है।
साहित्य ऐतिहासिक कहानियों को आलोचना और पुनर्व्याख्या भी कर सकता है। लेखक अपने काव्यों के माध्यम से इतिहास के स्वीकार्य संस्करण को सवालों के घेरे में लाते हैं। पक्षपात, अन्याय या भूली हुई सच्चाई को उजागर करते हैं। रूपक, प्रतीक और कथा दृष्टिकोण से साहित्य ये दिखाता है कि इतिहास कैसे सत्ता में बैठे लोगों द्वारा आकार लिया जाता है और कैसे इसे चुनौती दी जा सकती है या पुनर्कल्पित किया जा सकता है। साथ ही इतिहास साहित्य को समझने के लिए भी महत्वपूर्ण है। एक साहित्यिक अपने समय की सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में गहराई से निहित होती है। इसके बिना पाठक महत्वपूर्ण सुझाव, प्रतीक या संदर्भ को समझने में चूक सकते हैं, जो उस कृति को पूर्ण अर्थ देते हैं। उदाहरण स्वरूप उपनिवेशवाद के ऐतिहासिक संदर्भ को समझना उपनिवेशोत्तर साहित्य की पढ़ाई को समृद्ध करता है, जिसमें पहचान, विरोध और सांस्कृतिक संघर्ष के विषय सामने आते हैं। इतिहास वो ढांचा प्रदान करता है, घटनाएं और परिस्थितियां, जबकि साहित्य इस ढांचे के भीतर मानवीय अनुभव को भरता है। ये दोनों मिलकर भूतकाल की एक पूरी और समृद्ध तस्वीर प्रस्तुत करता है, जिसमें तथ्य और भावना, घटना और व्याख्या दोनों ही शामिल होते हैं। ये गतिशील संबंध हमें ना केवल ये जानने में मदद करता है कि क्या हुआ, बल्कि ये भी समझने में मदद करता है कि उस समय के लोगों के लिए इसका क्या महत्व था और आज हमारे लिए इसका क्या मतलब है। मेरे जो दूसरा स्लाइड है, वो है इतिहास और तुलनात्मक विश्व साहित्य की परिभाषा क्या है। और इतिहास और तुलनात्मक विश्व साहित्य के साथ अंतर संबंध, इस अंतर संबंध में वे 3 पॉइंट देकर इसे व्याख्या किया है। साहित्यिक संदर्भ और इतिहास, तुलनात्मक साहित्य और इतिहास से संबंध। मैं पहले बोलूंगी इतिहास क्या है और तुलनात्मक साहित्य विषय साहित्य का संज्ञा क्या है। इतिहास क्या है? इतिहास मानव अतीत का अनुशासित और व्याख्यात्मक अध्ययन है, जो साक्ष्यों के विश्लेषण और इतिहासकार के दृष्टिकोण द्वारा आकार लिया जाता है। ये केवल तारीख, घटना और व्यक्तियों का संग्रह नहीं है, बल्कि ये समझने का प्रयास है कि घटना कैसे और क्यों हुई और उनका समझ और व्यक्ति पर समय के साथ क्या प्रभाव पड़ा। इतिहासविद E.H. कार के अनुसार इतिहास मूल रूप से अतीत और वर्तमान के बीच एक संवाद है। वो कहते हैं कि ऐतिहासिक तथ्य अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होते, जब तक कि इतिहासकार उन्हें चुनकर व्याख्या ना करें। इसका मतलब है कि इतिहास पूरी तरह से वस्तुनिष्ठ या निश्चित नहीं है। ये इतिहासकार के दृष्टिकोण, उनके प्रश्न और उस समय के मूल्य से प्रभावित होता है जब वो इसे लिखते हैं। इस प्रकार इतिहास तथ्य पर आधारित और व्याख्यात्मक दोनों ही है। ये दस्तावेज, मौखिक कथा और भौतिक संस्कृति जैसे साक्ष्यों पर निर्भर करता है, लेकिन साथ ही इसमें आलोचनात्मक सोच, विश्लेषण और संदर्भ समझ की भी आवश्यकता होती है। इतिहासकार को स्रोत की विशेषज्ञता का, पक्षपात की पहचान करना और इसे कथानक बनाना पड़ता है। अतिरिक्त रूप से इतिहास मानव पहचान, सामूहिक स्थिति और परिवर्तन का समझ है।
इतिहास एक विकसित होता हुआ व्याख्यात्मक विषय है जो अतीत और वर्तमान के बीच सेतु का काम करता है। ये एक ऐसा उपकरण है जो साक्ष्यों पर आधारित है, लेकिन मानवीय दृष्टिकोण और उद्देश्य से जीवंत होता है। इसके बाद हम आते हैं तुलनात्मक विश्व साहित्य किसको बोलता है। तुलनात्मक विश्व साहित्य का परिभाषा। तुलनात्मक विश्व साहित्य एक अंतर विषय क्षेत्र है जो राष्ट्रीय साहित्य की सीमाओं को पार करते हुए साहित्यिक ग्रंथ के भाषा, संस्कृति और भौगोलिक विभाजन के पार संरचन, संचरण, परस्पर क्रिया और रूपांतरण का अध्ययन करता है। ये पारंपरिक राष्ट्रीय साहित्य अध्ययन की सीमा के प्रति एक आलोचनात्मक प्रतिक्रिया के रूप में उभरा है, जो अक्सर साहित्यिक परंपराओं को स्थिर क्षेत्रीय या भाषाई ढांचे के भीतर ही सीमित मानता है। इसका मूल उद्देश्य एक अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण अपनाना है, ताकि सबके ताकि ये समझ जा सके कि साहित्य उपनिवेशवाद, प्रवासन और वैश्वीकरण जैसे ऐतिहासिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित वैश्विक सबके भीतर कैसे कार्य करता है। ये दृष्टिकोण साहित्यिक रूप और विषयों की गतिशीलता पर जोर देता है। ये दर्शाता है कि किस प्रकार कथाएं विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भ में अनुदित, अनुकूलित और पुनः व्याख्यायित होते हैं। परिणामस्वरूप ये जातीय केंद्रित साहित्यिक परंपराओं को चुनौती देता है और बहुत सारे बहुस्वरीय और साहित्यिक की वक्तव्य भी यही है। पद्धतिगत रूप से तुलनात्मक विश्व साहित्य बहुभाषी और सांस्कृतिक विश्लेषण का उपयोग करता है, ताकि साहित्य के बीच अंत पाठ्य संवाद की पड़ताल की जा सके। यह अक्सर निर्वासन, पहचान, विज्ञापन और विभिन्नता जैसे सार्वभौमिक विषय पर केंद्रित होता है, जो विभिन्न साहित्यिक परंपराओं में प्रकट होते हैं। और इस प्रकार साझा मानवीय अनुभवों के साथ 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 सांस्कृतिक विशिष्ट अभिव्यक्तियों को उजागर भी करता है। इसके अतिरिक्त ये क्षेत्र इतिहास, समाजशास्त्र, उपनिवेशवाद के सिद्धांत और सांस्कृतिक अध्ययन जैसे विषयों के अंतर्दृष्टियों को अपनाकर साहित्यिक निर्माण और ग्रहण की सामाजिक राजनीतिक पृष्ठभूमि के पृष्ठभूमि को समझता है। उदाहरण स्वरूप तुलनात्मक अध्ययन उपनिवेशोत्तर अफ्रीकी साहित्य में विस्थापन और गृह की प्रतिभाओं को भी तुलना समकालीन यूरोपीय इतिहास में शामिल हो सकता है। इसके बाद हम आते हैं इतिहास और तुलनात्मक विश्व साहित्य के बीच जो अंतर संबंध है उसको व्याख्या करेंगे। इतिहास और तुलनात्मक विश्व साहित्य के बीच अंतर संबंध दोनों विषयों की समझ समाज के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इतिहास जो अतीत की घटनाओं का व्यवस्थित अध्ययन है, साहित्यिक कृति के निर्माण और ग्रहण के लिए आवश्यक सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संदर्भ प्रदान करता है, जो विभिन्न काल और क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं। तुलनात्मक विश्व साहित्य जो विभिन्न भाषाएं और सांस्कृतिक परंपराओं के साहित्यिक कार्य से जुड़ता है, यह आलोचनात्मक दृष्टिकोण प्रदान भी करता है कि कैसे ऐतिहासिक परिस्थितियां कथा के रूप, विषयगत चिंता और साहित्यिक शास्त्र को प्रभावित करती है। शैक्षणिक दृष्टिकोण से इतिहास केवल पृष्ठभूमि के रूप में नहीं बल्कि एक गतिशील ढांचे के रूप में भी कार्य करता है, जिसके भीतर साहित्य प्रमुख विचारधाराओं और सत्ता संरचनाओं का प्रतिबिंब और विरोध दोनों ही करता है। साहित्यिक कृतियां अक्सर ऐतिहासिक चेतना को व्यक्त करती है, घटनाओं, सामाजिक संबंधों और सामूहिक पहचान की प्रस्तुति या पुनर्व्याख्या भी करती है। उदाहरण स्वरूप उपनिवेशोत्तर साहित्य उपनिवेशवादी शासन की ऐतिहासिक वास्तविकता और उसकी स्थायी छाया की पड़ताल करता है, इससे
वो ऐसे इतिहास लेखन में योगदान देता है जिसमें स्वर और अनुभव सम्मिलित होता है। इसके विपरीत तुलनात्मक विषय साहित्य ऐतिहासिक जांच को समृद्ध करता है, क्योंकि ये राष्ट्र सीमा पार के आदान प्रदान, सांस्कृतिक और विचार तथा कथाओं के परिसंचरण को प्रमुखता देता है। ये अंतर सांस्कृतिक दृष्टिकोण यूरो केंद्रित या राष्ट्रवादी इतिहास लेखन को चुनौती देता है और ऐतिहासिक प्रक्रियाओं और उनके साहित्यिक अभिव्यक्तियों की अंतर संबंधता को प्रकट करता है। इतिहास और तुलनात्मक विषय साहित्य के बीच अंतर विषय संबंध मानव अनुभव की अधिक जटिल समझ को संभव बनाता है। जहाँ इतिहास साहित्य सृजन के लिए भौतिक परिस्थितियां प्रदान करता है, वहीं तुलनात्मक साहित्य वैश्विक संदर्भ में ग्रंथ का विश्लेषण करने के लिए महत्वपूर्ण विधियां प्रस्तुत करता है, जिससे सांस्कृतिक और ऐतिहासिक अभिव्यक्ति पर एकेडमिक विमर्श को विस्तार मिलता है। इतिहास और विश्व तुलनात्मक साहित्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जो एक दूसरे को गहराई से प्रभावित और समृद्ध भी करता है। इतिहास वो पृष्ठभूमि प्रदान करता है जिसके आधार पर साहित्य रचा जाता है, जो विभिन्न समय और स्थान से निकलने वाले कहानियां, विषय और आवाज को आकार देता है। उदाहरण के लिए युद्ध, क्रांति, उपनिवेशवाद या सामाजिक उत्थान की हलचल साहित्य में समाहित हो जाती है, जिससे मानव संघर्ष, आशा और परिवर्तन की शक्तिशाली कथाएं जन्म लेती हैं। विश्व तुलनात्मक साहित्य हमें ये जानने का अवसर देता है कि कैसे विविध संस्कृतियां समान ऐतिहासिक अनुभवों पर प्रतिक्रिया करती है, जो साझा मानवता के पैटर्न या स्पष्ट विरोधाभासी को उजागर करता है। विभिन्न देश और काल के साहित्यों की तुलना करके हमें ये पता लगाते हैं कि कैसे ऐतिहासिक शक्तियां समाजवाद, प्रवासन या तकनीकी बदलाव सीमाओं के पार गूंजती है और कलात्मक अभिव्यक्ति को प्रभावित करती है। साहित्य एक जीवन चित्रपट बन जाता है, जिसमें ऐतिहासिक श्रुति, सांस्कृतिक पहचान और दार्शनिक विचार चुने होते हैं। मूल रूप से इतिहास साहित्य को उसका संदर्भ और अर्थ देता है, जबकि साहित्य इतिहास को व्यक्तिगत और सामूहिक कहानियों के माध्यम से संरक्षित और व्याख्यायित करता है। यह गतिशील संवाद न केवल अतीत को समझने में मदद करता है, बल्कि वैश्विक दृष्टिकोण में बदलते मानव अस्तित्व को भी उजागर करता है। इतिहास और तुलनात्मक साहित्य के बीच जो अंतर संबंध है, उसको स्पष्ट करने के लिए मैं कुछ उदाहरण पेश करूंगी। फर्स्ट उदाहरण है उपनिवेशिकता और साहित्य। यूरोप उपनिवेशिकता का इतिहास यूरोपीय उपनिवेशिकता का इतिहास विश्व साहित्य को गहराई से प्रभावित करता है। नाइजीरिया औपन्यासिक चिनुबा आचेबे और भारत के सलमान रुश्दी जैसे लेखक अपने काव्य के माध्यम से औपनिवेशिक अतीत पर प्रतिक्रिया देते हैं और पहचान, शक्ति और प्रतिरोध जैसे विषयों का अन्वेषण भी करते हैं। आचेबे की किताब थिंग्स फॉल्स अपार्ट ये पारंपरिक अफ्रीकी समाज में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के कारण आई विघटन को स्पष्ट रूप से दर्शाती है, जबकि सलमान रुश्दी की मिडनाइट चिल्ड्रन भारत के ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता की और संक्रमण को प्रतिबिंबित करती है। बाद आते हैं विश्व युद्ध और आधुनिकता। पहला और दूसरा विश्व युद्ध साहित्यिक आंदोलनों जैसे आधुनिकता को गहराई से प्रभावित किया। टी.एस. इलियट और वर्जीनिया वुल्फ जैसे लेखक पारंपरिक कथात्मक रूपों को तोड़कर एक ऐसे विश्व को खंडित और भ्रमित अनुभव को व्यक्त करते हैं जो युद्ध के झटकों से हिल गया था। उदाहरण के लिए इलियट की कविता युद्धोत्तर यूरोप की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक निराशा को पकड़ती है। इसके बाद आता है रूसी क्रांति और समाजवादी यथार्थवाद।
1917 की रूसी क्रांति ने राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य को बदल दिया, जिससे साहित्य भी गहराई से प्रभावित हुआ। सोवियत लेखक मैक्सिम गोर्की जैसे समाजवादी यथार्थवाद को अपनाकर ऐसे कार्य बनाए जो मजदूर वर्ग और कम्युनिस्ट आदर्श की महिमा करते हैं। इसे उसी समय की पश्चिमी साहित्य के साथ तुलना करने पर अलग-अलग ऐतिहासिक वास्तविकताओं द्वारा आकार लिए गए विरोधाभासी दृष्टिकोण सामने आते हैं। ये सभी उदाहरण दिखाता है कि साहित्य खाली जगह में नहीं होता, ये अपने समय की ऐतिहासिक घटनाओं और सामाजिक वास्तविकताओं से गहराई से प्रभावित होता है। उदाहरण के लिए उपनिवेशवाद एक बड़ा वैश्विक ऐतिहासिक प्रभाव था और चिनवा आचेवे, सलमान रुश्दी जैसे लेखक अपने कहानियों के माध्यम से उपनिवेशी शासन के प्रभाव और उसके बाद की पहचान की लड़ाई को व्यक्त करते हैं। उनके कार्य पाठकों को ये समझने में मदद करते हैं कि इतिहास ने व्यक्तियों और समाजों को कैसे प्रभावित किया है। इसी तरह विश्व युद्ध के आघात ने लेखकों को जीवन और कहानी कहने के तरीके को बदल दिया। आधुनिकवादी लेखक नई शैलियों के साथ प्रयोग करते हुए इस भ्रम और हानि को पकड़ने की कोशिश करते हैं जो लाखों लोगों ने महसूस किए थे। ये दिखाता है कि इतिहास ना केवल ये निर्धारित करता है कि क्या लिखा जाता है, बल्कि ये भी कि कहानियां कैसे सुनाई जाती है। रूसी क्रांति ने एक नया राजनीतिक तंत्र बनाया, जिसने उस युग में बनी साहित्यिक रचनाओं को प्रभावित किया, जो उस समय को आदर्श और चुनौतियों की प्रतिबिंबित करती है। सभ्य साहित्यों की तुलना उसी अवधि के पश्चिमी साहित्यों से करने पर ये पता चलता है कि विभिन्न ऐतिहासिक अनुभव कितने अलग-अलग प्रकार के साहित्य का उत्पादन करते हैं। इस सभी उदाहरण में इतिहास मंच तैयार करते हैं और साहित्य के लिए विषय प्रदान करता है, जबकि तुलनात्मक साहित्य इन विविध प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करता है, जिससे हमें संस्कृतियों और समय के पार साझा मानव अनुभव, संबंध और विरोधाभास देखने में मदद मिलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। मेरा जो नेक्स्ट स्लाइड है वो है तुलनात्मक विश्लेषण इतिहास के प्रति विभिन्न सांस्कृतिक प्रतिक्रियाएं। मैं इसमें दोनों पॉइंट करके मैं व्याख्या किया हूं मैंने। एक है विभिन्न संस्कृतियों में क्रांतिकारी आंदोलन और एक है उपनिवेशवाद और उत्तर उपनिवेशिक आख्यान। इसमें मैंने भारतीय इतिहास में साहित्य का प्रभाव और विश्व इतिहास में साहित्य का प्रभाव, ये दो तरीके से इस पॉइंट को व्याख्या किया है। पहले आते हैं हम भारतीय इतिहास में साहित्य का प्रभाव। भारतीय इतिहास साहित्य का एक अहम हिस्सा रहा है, जो न केवल समाज का प्रतिबिंब रहा है, बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक बदलाव को भी प्रेरित करता रहा है। प्राचीन साहित्य और उसका प्रभाव। सबसे प्रारंभिक भारतीय साहित्य जैसे वेद, उपनिषद और महान महाकाव्य महाभारत और रामायण ने भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान को आकार दिया है। वेद में धार्मिक मंत्र और दार्शनिक विचार थे, जिन्होंने हिंदू धर्म की सामाजिक व्यवस्था को प्रभावित किया। महाभारत और रामायण केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं है,
बल्कि नैतिकता, शासन और धर्म की यहाँ महत्ता सिखाई जाती है। उदाहरण के तौर पर भगवत गीता में बिना फल की चिंता किए अपने कर्तव्य का पालन करने की शिक्षा दी गई, जिसने कई भारतीय विचारकों और नेताओं को प्रभावित किया। ये प्राचीन ग्रंथ विभिन्न समुदाय को एक साझा सांस्कृतिक ढांचे में बांटते थे, जो लोगों को सामान्य कहानियां, मूल्य और परंपराओं के माध्यम से जोड़ते थे। ये साहित्य, नृत्य, नाटक और मूर्तिकला जैसे कला रूपों को भी प्रेरित करते हैं, जिससे ये विचार पीढ़ी पर पीढ़ी फैलते रहे। इसके बाद हम आते हैं मध्यकालीन साहित्य और सामाजिक सुधार पे। मध्यकाल में भारत में भक्ति और सूफी आंदोलन का उदय हुआ, जिन्होंने जाति और धर्म की सीमाओं से परे ईश्वर की भक्ति पर जोर दिया। कबीर, तुलसीदास, मीराबाई और गुरु नानक जैसे संत ने स्थानीय भाषाओं में कविता और भजन लिखे, जिससे आम लोगों तक आध्यात्मिक ज्ञान पहुंचा। ये साहित्य जाति प्रथा और सामाजिक अन्याय को चुनौती देता था और समानता, प्रेम, भक्ति के विचार फैलाता था। इस प्रकार का साहित्य धार्मिक विचारों को प्रभावित करने के साथ साथ सामाजिक सुधार और एकता की भावना भी बढ़ावा देता, जो बाद में सामाजिक भेदभाव के खिलाफ आंदोलनों का आधार बना। औपनिवेशिक काल और राष्ट्रीय जागरूकता। ब्रिटिश शासन के दौरान साहित्य ने एक मजबूत राजनीतिक भूमिका निभाई। भारतीय लेखकों ने अपने काव्यों के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना जगाई और स्वतंत्रता संग्राम को प्रोत्साहित किया। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास आनंद मठ ने वंदे मातरम गीत दिया, जो स्वतंत्रता सेनानियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गया। रविंद्रनाथ टैगोर जैसे लेखक भारत के प्रति गहरा प्रेम व्यक्त करते हुए औपनिवेशिक शासन की आलोचना करते थे। टैगोर के साहित्य में मानवता, आत्मसम्मान और सांस्कृतिक गर्व पर जोर दिया, जिससे कई भारतीयों को स्वतंत्रता और न्यायपूर्ण समाज की कल्पना करने के लिए प्रेरित किया। इस काल में क्षेत्रीय भाषाओं में साहित्य का विकास हुआ, जिससे आम जनता के बीच जागरूकता फैलाई और लोगों को जोड़कर राष्ट्रवादी विचार फैलाए। स्वतंत्रता के बाद का साहित्य। 1947 में स्वतंत्रता के बाद भारतीय साहित्य ने गरीबी, जाति भेदभाव, लिंग समानता और सांप्रदायिकता जैसे सामाजिक मुद्दों को उठाया। प्रेमचंद जैसे लेखक आम आदमी की कठिनाई को दर्शाते थे, जबकि आर के नारायण ने रोज नामचा की जिंदगी को कोमलता और सादगी से प्रस्तुत किया। आधुनिक काल में भारतीय साहित्य भारत की विविधता, चुनौतियों और तेजी से हो रहे बदलाव को दर्शाता है। सलमान रुश्दी, अरुंधति रॉय और झुम्पा लाहिरी जैसे लेखक पहचान, प्रवास और वैश्वीकरण के विषय को उजागर करते हैं, जो भारत की वैश्विक समझ में योगदान करते हैं। साहित्य भारतीय इतिहास में गहराई से जुड़ा हुआ विषय है। इसने सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित किया है, आध्यात्मिक और नैतिक विचार फैलाए, सामाजिक अन्याय को चुनौती दी, राजनीतिक आंदोलनों को प्रेरित किया और समाज की बदलती वास्तविकताओं को दर्शाया। कविता, कहानियां और गीतों के माध्यम से साहित्य ने भारतीयों की सोच और दृष्टिकोण को आकार दिया, जिससे भारत एक समृद्ध और विविध परंपराओं वाला राष्ट्र बना। इसके बाद हम आते हैं विश्व साहित्य में साहित्य का प्रभाव। विश्व इतिहास में साहित्य का प्रभाव। साहित्यिक इतिहास का अर्थ है ये अध्ययन करने की समय के साथ साहित्य कैसे बदला है और ये ऐतिहासिक घटनाओं, संस्कृति और विचार से कैसे प्रभावित हुआ है वो दिखाता है। ये हमें समझने में मदद करता है कि अलग-अलग समय में कुछ खास विषय, शैली या प्रकार क्यों लोकप्रिय हुए हैं। उदाहरण के लिए रोमांटिक युग के दौरान लेखक फ्रांसीसी क्रांति से बहुत प्रभावित हुए थे, जिसमें स्वतंत्रता, व्यक्तिगत अधिकार और परंपरागत सत्ता के खिलाफ आवाज उठाई गई थी। उसी समय हर जगह
फैक्ट्री और मशीन बन रही थी। इसके जवाब में रोमांटिक लेखक जैसे विलियम वर्dsworth और सैमुअल टेलर कोलरिज ने अपनी कविताओं में प्रकृति, गहरे भावनात्मक अनुभव, कल्पना और व्यक्तिगत सोच को महत्व दिया। उनका लेखन पहले के प्रवर्धन काल जैसे कि एनलाइटमेंट पीरियड से बहुत ही अलग था, जिसमें तर्क, विज्ञान और ज्ञान को ज्यादा महत्व दिया जाता था। यह बदलाव दिखाता है कि साहित्य अपने समय की भावनाओं, संघर्ष और विचार को कैसे दर्शाता है। इसीलिए साहित्यिक इतिहास हमें ये समझने में मदद करता है कि साहित्य दुनिया के हालातों के बीच क्या संबंध है। के बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में मैं ऐतिहासिक संदर्भ में प्रतिबिंबों के रूप में साहित्य, स्मृति, इतिहास और साहित्य के बीच अंतर विषयक संबंध, इतिहास, मिथक और साहित्य का परस्पर संबंध जो है वो, और साहित्य में ऐतिहासिक आख्यानों की तुलना, साहित्यिक साहित्य के माध्यम से इतिहास को पुनर्व्याख्या, ये 5 जो पॉइंट है वो मैं व्याख्या करूंगी। ऐतिहासिक संदर्भ के प्रतिबिंब के रूप में साहित्य साहित्य किसी समय विशेष की सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियों को प्रतिबिंबित करता है। ये मात्र कल्पना नहीं होता, बल्कि समाज में घट रही घटनाओं, संघर्ष और परिवर्तनों की प्रतिक्रिया के रूप में जन्म जन्म लेता है। इसीलिए साहित्य को समय का दर्पण भी कहा गया है। हर युग का साहित्य उस युग की मानसिकता, संघर्ष और चेतना को दर्शाता है। जब हम किसी युग का साहित्य पढ़ते हैं, तो हमें उस युग की समस्याएं, जीवन शैली, शासक वर्ग, जनता की दशा, आंदोलन आदि की जानकारी मिलती है। जैसे प्रेमचंद के उपन्यास में आजादी से पहले के भारतीय समाज की गरीबी, किसान जीवन और सामाजिक कृतियां देखा जाता है। हरिश्चंद्र के नाटक और लेखों में 19वीं सदी की नवजागरण की चेतना और उपनिवेशिक प्रभाव पर विमर्श मिलता है। इस तरह साहित्य इतिहास को केवल सूचना के रूप में नहीं, बल्कि मानवीय संवेदना के साथ प्रस्तुत करता है। स्मृति, इतिहास और साहित्य के बीच जो अंतर संबंध है, इतिहास और स्मृति जैसे कि मेमोरी के बीच का संबंध जटिल है। इतिहास प्रामाणिक तथ्य और दस्तावेजों पर आधारित होता है, जबकि स्मृति व्यक्तिगत या सामूहिक अनुभवों का संग्रहित रूप होते हैं। साहित्य इन दोनों के बीच सेतु बनाता है। साहित्य में स्मृति इतिहास को मानवीय रंग देती है, जहाँ केवल क्या हुआ था नहीं बताता, बल्कि ये भी दिखाता है कि इस घटना को लोगों ने कैसे महसूस किया था। विभाजन पर लिखे गए उपन्यास जैसे विश्व सहानी का तमस, अमृता प्रीतम की पिंजर सिर्फ ऐतिहासिक तथ्य नहीं बताते, बल्कि पीड़ितों की पीड़ा, भय और असुरक्षा को भी दिखाते हैं। श्रीलेखन में स्त्रियों की स्मृतियों के माध्यम से पितृ सत्यातक समाज की ऐतिहासिक छाया उजागर होती है। इस प्रकार साहित्य इतिहास के तथ्य को केवल पुनरावृत्ति नहीं करता, बल्कि स्थितियों के सहारे उन्हें मानवीय संवेदना से जोड़कर प्रस्तुत करता है। इतिहास, मिथक और साहित्य का परस्पर अंतर संबंध। इतिहास और मिथक दोनों ही साहित्य में रचनात्मक ढंग से प्रयुक्त होते हैं। इतिहास वस्तुनिष्ठ तथ्य पर आधारित होता है, जबकि मिथक सांस्कृतिक विश्वास, प्रतीकों और पुरो पूर्व कथाओं का रूप होता है। साहित्य इन दोनों को मिलाकर एक नई संरचना
करता है। कई बार मिथक में ऐतिहासिक सच्चाई छिपी होती है और कई बार इतिहास को मिथकीय रूप देकर प्रस्तुत किया जाता है। जैसे रामायण महाभारत जैसे ग्रंथ में ऐतिहासिक और सांस्कृतिक तथ्यों के साथ गहरे मिथकीय प्रतीक भी है। बहुत सारे रचनाकारों ने समकालीन संदर्भ से जोड़कर उन्हें नया अर्थ दिया है। इस तरह साहित्य इतिहास और मिथक इस तरह साहित्य इतिहास और मिथक दोनों के बीच संतुलन बनाता है और पाठक को एक गहरे सांस्कृतिक अनुभव से जोड़ता है। साहित्य में ऐतिहासिक व्याख्यानों की तुलना विभिन्न लेखक जब एक ही ऐतिहासिक घटना को अपने दृष्टिकोण से लिखते हैं तो एक घटना के कई आख्यान बनते हैं। ये साहित्य की विविधता और स्वतंत्रता को दर्शाता है। इन आख्यानों की तुलना करके हम ये समझ सकते हैं कि इतिहास का अनुभव हर व्यक्ति या वर्ग के लिए अलग हो सकता है। उदाहरण स्वरूप झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को लेकर सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता झांसी की रानी में उनका चित्रण वीरांगना के रूप में हुआ है, जबकि महाश्वेता देवी की उपन्यास में वो एक संघर्षशील मानवतावादी और स्त्री दृष्टिकोण वाली रानी के रूप में सामने आती है। 1857 का विद्रोह अंग्रेजों की दृष्टि में सिपाही विद्रोह था, लेकिन भारतीय लेखकों ने इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है। इस तरह साहित्य में ऐतिहासिक आख्यानों की तुलना करने से पता चलता है कि इतिहास के कई सत्य होता है जो समय, स्थान और दृष्टिकोण के अनुसार बदलते रहते हैं। साहित्य के माध्यम से इतिहास की पुनर्व्याख्या भी किया जाता है। साहित्यकार इतिहास की आधिकारिक व्याख्याओं को चुनौती देकर इसे नए से देखने की दृष्टि प्रदान करते हैं। ये पुनर्व्याख्या एक्चुअली मार्जिनलाइज जो वर्ग है उससे दृष्टि से होती है, जैसे कि स्त्री इतिहास, दलित इतिहास, आदिवासी या उपनिवेशित समाज साहित्य उन आवाजों को उजागर करता है जिन्हें पारंपरिक इतिहास ने अनदेखा किया है। उदाहरण दलित साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को दलित दृष्टिकोण से व्याख्यायित किया गया है, जैसे ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा झूठन केवल केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं बल्कि पूरे सामाजिक इतिहास की पुनर्व्याख्या है जो मुख्य धारा के इतिहास में गौण था। इस तरह साहित्य इतिहास को सिर्फ दोहराता नहीं बल्कि उसे सवालों के घेरे में लाकर पुनः परिभाषित करता है। साहित्य और इतिहास का रिश्ता गहरा, जटिल और रचनात्मक भी है। साहित्य इतिहास को संवेदना, कल्पना और अनुभव के साथ जोड़ता है, वर्तमान और भविष्य को दिशा भी देता है। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड है इतिहास के अध्ययन में तुलनात्मक साहित्य के योगदान। यह योगदान 5 तरीके से हुआ है। एक तो इतिहास पर अंतरसांस्कृतिक दृष्टिकोण से, सामाजिक और राजनीतिक संदर्भों का खुलासा से, ऐतिहासिक आख्यानों और विचारधाराओं की व्याख्या से और वैश्विक साहित्यिक आंदोलनों पर नजर रखना और ऐतिहासिक स्थिति और पहचान को समझना। तुलनात्मक साहित्य विभिन्न संस्कृतियों के साहित्यिक ग्रंथ का विश्लेषण करके दिखाता है कि कैसे अलग-अलग संस्थाएं ऐतिहासिक घटनाओं को दिखाता है या देखती है। इससे इतिहास का एक बहुआयामी और विविध दृष्टिकोण उभरता है। उदाहरण स्वरूप प्रथम विश्व युद्ध पर जर्मनी
फ्रांसीसी और अंग्रेजी साहित्य की भिन्न भिन्न प्रतिक्रियाएं ये दिखाता है कि एक ही घटनाओं को अलग अलग सांस्कृतिक दृष्टिकोण से कैसे देखा गया। सामाजिक और राजनीतिक संदर्भों का खुलासा। वही साहित्यिक कृतियों अपना समय की सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों का प्रतिबिंब होते हैं। तुलनात्मक अध्ययन के जरिए हम ये जान सकते हैं कि किन ऐतिहासिक घटनाओं ने किस प्रकार साहित्य को प्रभावित किया और बदले में साहित्य ने उन घटनाओं की व्याख्या कैसे की। उदाहरण औपनिवेशिक साहित्य स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े रचनाएं ये दिखाता है कि किस प्रकार राजनीतिक संघर्ष ने साहित्यिक अभिव्यक्ति को रूप दिया। इतिहास को केवल तथ्यों का संग्रह मानने के बजाय तुलनात्मक साहित्य उसे आख्यान मतलब नैरेटिव के रूप में देखता है। यह विश्लेषण करता है कि किस प्रकार ऐतिहासिक घटनाओं को साहित्यिक रूप में व्याख्या किया गया और किस विचारधारा के तहत उनका चित्रण किया गया। उदाहरण राष्ट्रवाद, साम्यवाद, उपनिवेशवाद जैसे विचार ऐतिहासिक आख्यानों में किस रूप में प्रकट होते हैं एवं इसे तुलनात्मक साहित्य उजागर भी करता है। तुलनात्मक साहित्य विभिन्न देश में साहित्यिक आंदोलन जैसे रोमांटिसिज्म, यथार्थवाद, आधुनिकतावाद को ऐतिहासिक संदर्भ में जोड़कर समझने में मदद करता है। उदाहरण स्वरूप फ्रांसीसी क्रांति और उसके बाद यूरोप में फैले रोमांटिक आंदोलन को समझना केवल साहित्यिक नहीं बल्कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी जरूरी है। ऐतिहासिक स्थिति और पहचान को समझना। साहित्य विशेषकर आत्मकथाएं, उपन्यास और लोक कथाएं सामूहिक स्थिति और पहचान के निर्माण में अहम भूमिका निभाते हैं। तुलनात्मक साहित्य ये दिखाता है कि अलग-अलग समुदाय कैसे अपनी ऐतिहासिक स्थिति को साहित्य के माध्यम से संरक्षित और अभिव्यक्त करते हैं। उदाहरण के तौर पर विभाजन से संबंधित साहित्य भारत और पाकिस्तान दोनों में सांस्कृतिक स्थिति और पहचान को कैसे प्रभावित करता है। ये तुलनात्मक अध्ययन से बेहतर ढंग से समझा जा सकता है। तुलनात्मक साहित्य और इतिहास के अध्ययन को केवल तथ्य तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उसे सांस्कृतिक और भावनात्मक पर भी समझने का अवसर देता है। इससे इतिहास अधिक मानवीय और बहुआयामी और समकालीन बनता है। मैं मेरे वक्तव्य का अब कंक्लूजन में मतलब निष्कर्ष में आ चुकी हूँ। निष्कर्ष में आने से पहले मैं और एक स्लाइड दिखाऊं। निष्कर्ष को मैंने 3 पॉइंट में व्याख्या किया। एक है परिप्रेक्ष्य का विस्तार, आज की दुनिया में इतिहास और तुलनात्मक साहित्य का जो प्रासंगिकता है वो, और साहित्य के माध्यम से ऐतिहासिक जुड़ाव। इतिहास को समझने में तुलनात्मक साहित्य की शक्ति। इतिहास किसी भी राष्ट्र या समाज के अतीत की घटनाओं, जीवन शैली, विचारधाराओं, संघर्ष और विकास की कहानी है, परंतु इतिहास को सिर्फ सूखे तथ्य, तारीखों और घटनाओं के रूप में याद करना पर्याप्त नहीं है। इसे समझने के लिए हमें उस समय के लोगों की भावनाओं, उनकी मानसिकता और सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को भी जानना आवश्यक होता है। यहाँ ही तुलनात्मक साहित्य की भूमिका ज्यादा है। उसके बाद आता है परिप्रेक्ष्य का विस्तार मतलब एक्सपेंशन ऑफ पर्सपेक्टिव। एक्सपेंशन ऑफ पर्सपेक्टिव। तुलनात्मक साहित्य हमें अलग-अलग देशों और संस्कृति के साहित्य को एक साथ पढ़ने का मौका देता है। इसका मतलब है कि हम न केवल अपने देश या भाषा की सीमाओं तक ही सीमित नहीं रहते, बल्कि विश्व के विभिन्न हिस्सों में लोगों ने इतिहास को कैसे देखा और महसूस किया,
इसे भी जानने का अवसर मिलता है। उदाहरण के तौर पर भारत के स्वतंत्रता संग्राम की कहानी को भारतीय साहित्य पढ़कर समझना अलग है और अंग्रेजी, अफ्रीकी या लैटिन अमेरिकी उपनिवेशवाद विरोधी साहित्य पढ़कर इसे एक व्यापक वैश्विक संदर्भ में समझना अलग है। इस तरह तुलनात्मक अध्ययन से हम इतिहास की घटनाओं को विभिन्न दृष्टिकोण से देख पाते हैं, जिससे हमारा ज्ञान और सोच दोनों ही व्यापक होता है। आज की दुनिया में इतिहास और तुलनात्मक साहित्य का प्रासंगिकता मतलब रेलेवेंसी इन कंटेम्पोररी वर्ल्ड। इतिहास आज की दुनिया की रीति है। हमारे सामने मौजूद सामाजिक राजनीतिक समस्याएं जैसे जातिवाद, उपनिवेशवाद के प्रभाव, युद्ध और आर्थिक असमानता या परोक्ष रूप से अतीत से जुड़े होते हैं। तुलनात्मक साहित्य हमें ये समझने में मदद करता है कि ये समन्वय अचानक नहीं आई, बल्कि बल्कि इनके पीछे लंबे समय तक चली सामाजिक राजनीतिक प्रक्रिया भी है। उदाहरण के लिए अफ्रीकी या लैटिन अमेरिका के उपनिवेशवादी इतिहास को समझने के लिए वहां के साहित्य का अध्ययन महत्वपूर्ण है। इसी तरह भारतीय साहित्य उपनिवेशवाद के खिलाफ लड़ाई और सामाजिक सुधार की कहानियां बनाता है। तुलनात्मक रूप से इन सभी को जानने से हम आज की वैश्विक समस्याओं को समझने और उनके समाधान की खोज में बेहतर बन पाते हैं। साहित्य के माध्यम से ऐतिहासिक जुड़ाव मतलब हिस्टोरिकल कनेक्शन थ्रू लिटरेचर। इतिहास की किताबें तथ्य बताते हैं, पर साहित्य हमें उन तथ्यों के पीछे छिपी मानवीय भावनाओं से जोड़ता है। जब हम किसी काल के कविता, कहानियां या नाटक पढ़ते हैं, तो हम उस समय के लोगों की पीड़ा, संघर्ष, आशा और सोच को महसूस भी करते हैं। जैसे युद्धकालीन कविता हमें सैनिकों की भावनाएं, उनके डर और उनकी उम्मीदों से रूबरू करता है। या स्वतंत्रता संग्राम की कहानियां हमें उन स्वतंत्रता सेनानियों के मनोबल और त्याग का अनुभव भी कराती है। इससे इतिहास हमारे लिए जीवंत अनुभव बन जाता है। इस प्रकार तुलनात्मक साहित्य न केवल हमें विभिन्न संस्कृतियों और भाषाओं के ऐतिहासिक अनुभवों से परिचित कराता है, बल्कि ये हमें एक वैश्विक नागरिक बनाने में मदद करता है, जो इतिहास के विविध पहलुओं को समझता है और उनमें सीखता है। ये हमें याद दिलाता है कि इतिहास का अध्ययन केवल अतीत को जानने के लिए नहीं, बल्कि वर्तमान को समझने और भविष्य को बेहतर बनाने के लिए भी जरूरी है। तुलनात्मक साहित्य इस प्रक्रिया को सरल, समृद्ध और प्रभावशाली बनाते हैं। इतिहास और विश्व तुलनात्मक साहित्य का जो अंतर संबंध है वो अटूट है, जो एक दूसरे की समझ को समृद्ध करते हैं। इतिहास वो संदर्भ तैयार करता है जिसमें साहित्य उत्पन्न होता है, जो इसकी विषय वस्तु, शैली और आवाजों को प्रभावित करता है, जबकि साहित्य विविध सांस्कृतिक दृष्टिकोण के माध्यम से ऐतिहासिक अनुभव को संरक्षित और व्याख्यायित करता है। विभिन्न काल और स्थान के साहित्य का अध्ययन करके हम मानवता के साझा संघर्ष, परिवर्तन और आकांक्षाओं की गहरी समझ प्राप्त करते हैं। ये गतिशील संबंध न केवल कथाकथन की शक्ति की सराहते हैं, शक्ति की सराहने के लिए काम करता है, बल्कि यह विश्व की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की एक समृद्ध और अधिक जुड़ी हुई दृष्टि को भी बढ़ावा देता है। इसके साथ मैं मेरा जो लास्ट जो स्लाइड है वो दिखाना चाहूंगी, वो है धन्यवाद। मेरा आज का जो वक्तव्य है इसी से समाप्त होते हैं।
मैं डॉक्टर सौमिता मित्र तुलनात्मक विश्व साहित्य के आभारी संगोष्ठी में आप सभी का धन्यवाद देती हूँ। सबसे पहले मैं हिंदी विश्वविद्यालय के कुलपति आदरणीय प्रोफेसर नंदिनी साहू मैडम को आभार व्यक्त करती हूँ, जिनके मार्गदर्शन और प्रेरणा से विश्वविद्यालय में इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन संभव हो सका। आपकी प्रतिबद्धता और कार्यकुशलता से न केवल विश्वविद्यालय का मान बढ़ा है, बल्कि विद्यार्थियों और शैक्षिक जगत के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बन चुके हैं। आप सभी को धन्यवाद, जिन्होंने इतने समय तक मेरे वक्तव्य सुनने के लिए जुड़े हुए हैं। साथ ही विश्वविद्यालय के सभी संकायों के समस्त प्राध्यापकों को और विभागीय कर्मचारियों का भी हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। एक बार पुनः आप सभी को सादर धन्यवाद और हमारे विश्वविद्यालय की कुलपति आदरणीय प्रोफेसर नंदिनी साहू मैडम को मेरा प्रणाम बोल के मैं आज का मेरा जो वक्तव्य है वो समाप्त करना चाहूंगी।